Okay, Bismillah Rahman Rahim. Dear students, we just complete this video about the program we discussed it in the class because tomorrow we had to go to the college, and so I'm making a video lecture. Okay, and I named it truck.c. I completed it. I will just give it an overview. What is this? So this is the same program, and I completed it and added few things to it. Uh, Press any key to make to park your, I say to park, P-A-R-K, park your truck. Okay, so I'm saying this thing. So to park your truck, let me see how our truck gets parked. Okay, let me see the output. Control F9. Font is bigger. It's getting very faster, so I need to slow it down a little bit. Okay, because I have put on the delays, shorter delays, so that okay, 50 here, 50 here. Here is delay of 50, for example, and again delay of 50 here, and then 50 here. I am incrementing 10. Yes, Control F9. So what happens is the truck comes from this side, changing the colors, making sound, stops here. Then the bar comes in, the parking bar, and lifts this up and then stops. So how I have done it, let me show you this thing. Okay, I will put it in a C free file, save, cancel, file, save. Okay, now I go to the C free. Okay, I will show it here. This is the code because it's tough to work in that Turbo C. So let's work it out here. What's happening? So we are saying firstly, okay, what we are saying is let me use the screen draw to draw the things. Firstly, we are saying GD equals to detect. Okay, that means to detect the best graphics driver. Watch another video of the basics of this graphics. Then we are using the init graph to initialize the graphics mode, where we had a GD and GM addresses of them and the path of the Turbo C3 here right now. Then we set text style, that's default font and horizontal direction, and font size is 3. I need to reduce it because it's getting out of the window, so I will keep it 2. So let me keep it 2 only. Here, let me keep it 2. Okay. So maybe it's not because it's open in 2 windows. Let me do it in a later on in my in Turbo C. Right now it's having some issues. Then out text XY. Then I'm out text XY means put some text at some X and Y position, and the text I'm putting up is the press any key to make a car move at 0x and 200y. Then getcha means stop it. That's what I have to press some key to go forward. Then I put up a loop here. We had done this loop where we created a rectangle. Firstly, a rectangle from the 0, that is this one. This has a 0 and 300y. Because this is, if this is my screen, say for example, okay, so from this is x0 and y has gone 300 down, so this is 0 and 300 this point. Then it has moved to the 200 and 400, so 200 on this side, move 200 on this side, and 400 down, that is 300 was up to this point, and 100 more, that is 400. So this point is now 200 and 400, right? So it will create me a triangle. Now next triangle will be created. It starts at 200, so x 200, that means this is the x 200 because I had moved 200 this way, that is this much. So it starts from here, somewhere here
on this x-axis at this point somewhere, but I have to see the y. What is y? Y is 350. So 300 was up to this, so 350 is here. So I start literally from here, where the 200 is the x and y is 350. And then I got 250 and 400. So then x is 250. Okay, so that means 50 more. If it is 250 more, say maybe up to this is 50 more. And because I want to talk about this point, so 50 more, and y is 400. That means 300 was up to this, 50 was up to this, 50 more. This was 50, this is 50. Okay, and this much is 300 y. So total from here to here is 400. So I created this box, okay, of a truck, and then we have circles. Circle is starting from the 50, that means 0 if this is 0, so 50 here, and then y is 410, because up to this is 400, 400 plus 10, that is up to this point, and makes a circle of center 10. Then I moved on further, another circle, that's 150. So this is, so from this point 150x, that is here, say for example here, and then 410 again, so that means this point, and it makes a circle. So this point, iska x or iska y kitna hai? The x is the distance from here to here, and y is distance from here to here. So from jo truck ki base hai, that is 400, plus this radius, that is 10, that is 410. So that will be my y. Now after I draw this, I put up the sound 700. You can change that to 300, 200, and see there are different sounds coming up. And then the delay means stop for 50 milliseconds. Then say no sound means sound will stop. Then again delay 50 milliseconds, and after that I set color J. So J starts from the 0 here, as you could see, and then J, I move on the J to up to 15. Okay, I move to the J. If the J is equal to 15, J is equal to back to, I can say 0, not 2, back to 0. So J can be back to 0, so it can generate 15 colors for us. Okay, so J is for colors, we will see that, because I'm saying here set color J. So you are changing the color of, for example, I'm drawing this by the red. So what is the color? Set color will set that. If I say set color 1, 2, 3, 4 up to 15, so 15 colors, it will change each, with every step it changes the color. With every iteration of this for loop, it also changes the color of the car, of this truck. And I'm saying here, if I equals 50 brake, I don't need it to do this, but I can do it. Why? Because when it reaches the 350, I brake. It will still brake, but sometimes it goes far away, and this happen. I don't want this to happen. 1 second, I will tell you what. I do not want clear device to happen. This clear device, I don't want clear device to happen. Okay, now if this clear device happens, it will clear like clear screen. क्योंकि हम व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर यूजिंग ए क्लियर डिवाइस. क्लियर डिवाइस क्या करता है कि आपने एक बनाया, कोई चीज़ बनाई, उसको क्लियर करता है. क्योंकि अगर आप क्लियर डिवाइस नहीं रखोगे, जैसे हम इस पे जाऊंगा वापस टर्बो सी पे, ये पहले भाग जाता है मुझे. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, दो बार खुल गया है. Alt enter. I will remove the clear device. ठीक है ना? So if I remove the clear device, what will happen? It will not clear the screen. Control F9. So because we are every time creating a new picture. Okay. So कहीं पर मैंने clear device remove किया, शायद इसका clear device मैंने remove किया जो ऊपर जाने वाला था. तो आप देखिए पुराना वाला उधर ही है, नया वाला आ गया. पुराना वाला उधर ही, नया वाला आ गया. क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए, साथ साथ पुराना वाला क्लियर करना चाहिए. इसने जंप मारी इधर, पुराना जो था वो क्लियर करना चाहिए. तो जंप कैसे मारते हैं हम, नया बनाते हैं यहाँ पे. सो पुराना क्लियर करते हैं, लगता है कि ये मूव हो गया. दरअसल हम मूव नहीं करा रहे इसको, हम यहाँ पे नया ड्रा करें. अगर यहाँ पे था, मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे, फिर आगे है ना, ऊपर सो ऑन. सो इसलिए क्लियर डिवाइस का होना बहुत जरूरी है. ओके, सो इसलिए हम क्लियर डिवाइस रखते हैं यहाँ पे. एज यू कुड सी इट्स, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ठीक ही हो गया. टर्बो सी के मसले यही होते हैं. सो अब उसके बाद जो, जब मैंने इसको आगे चलाना है, सो मैं क्या करूँगा काम, यहाँ पे मैं आई का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊँगा.
एक्स का वैल्यू, बिकॉज आई वांट टू गो इनटू हॉरिजॉन्टली। जब मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं तो मुझे उसका एक्स का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा वन नोट के अंदर, लेट मी गेट द वन नोट। इसमें टर्बो सी में, क्योंकि वो माउस को हैंग कर जाता है ना, तो इसको वन नोट। सो मैं क्या बोल रहा हूँ टेक्निकली आपको, दैट इज कि आपने जब ये ट्रक बनाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये इनकी कुछ एक्स वैल्यूज हैं। इस ट्रायंगल के ये यहाँ पे इसका एक्स था और वाई था, इसका ये पॉइंट है। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल, इस वाले रेक्टेंगल का ये एक्स एंड वाई और ये एक्स एंड वाई हमारे पास ये होते हैं ना। तो और ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है इसका एक्स एंड वाई हमें पता है, और दूसरा सर्कल है इसका एक्स एंड वाई। क्योंकि मुझे जो मेरा स्क्रीन है जिस वाई पे ये है बना हुआ है, मुझे वाई के साथ छेड़ना नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऊपर नीचे नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी अभी मैं इसको लेफ्ट और राइट करना चाहता हूँ, मैं इसको राइट मूव करना चाहता हूँ ट्रक को। सो व्हेन इट वांट टू मूव द ट्रक, द वाई विल रिमेन सेम, जो इनके वाइज है वो सेम ही है, लेकिन एक्सिस को मैं इंक्रीज करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स था 0, तो मैं अगर फर्ज कीजिए एक्स 10 रख रहा हूँ, अब 0 नहीं 10, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो दैट मीन्स हैज जंप्ड फ्रॉम हियर टू हियर। वाई तो मैं सेम ही रख रहा हूं, तो हर चीज का मैं एक्स इंक्रीज करूंगा। कितना इंक्रीज करूंगा? जितना मेरा ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, जिस हिसाब से मेरा रेक्टेंगल होगा। ऑल्ट एंटर टू मैक्सिमाइज इट। नाउ लुक हियर, आई एम, जो मेरा एक्सिस है, ओके, उनको मैं आई स्टार्ट फ्रॉम आई फ्रॉम 0 टू 350, उनको इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि लास्ट में क्लियर डिवाइस नहीं हो, क्योंकि अगर लास्ट में भी क्लियर डिवाइस हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो घूम जाएगा, फिर जो आपकी ट्रक है वो क्लियर हो जाएगी, लास्ट में कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन लास्ट में रुकना चाहिए, वहां दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई इक्वल इक्वल्स 350। वैसे अगर ये तब भी काम करेगा, क्योंकि ये जब 350 होगा उस सूरत में ये घुसेगा ही नहीं इस लूप में, मेरा ख्याल है तब भी काम करेगा, क्योंकि आई जब 350 होगा, क्योंकि मैं चला रहा हूँ 350 तक इसको, तो जब आई 350 आने वाला है, जब इक्वल होगा 350 के, उस वक्त ही चलेगा ही नहीं क्लियर डिवाइस, ठीक है ना। उस वक्त ये लूप चलेगी नहीं, लेकिन क्लियर डिवाइस उसने पहले किया होगा पिछली बार, तो मुझे दिखेगा नहीं, मुझे लगता है। कंट्रोल F9, एक बार इसको टेस्ट करेंगे। देखिए जब ये 350 आई बनेगा, क्लियर डिवाइस का गायब हो गया ना, ये वो गायब हो गया, क्योंकि क्लियर डिवाइस ने वो गायब किया। इसी वजह से हम क्या करते हैं काम, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ही भाई साहब तू ने 350 वाला काम किया, जब आई 350 बन गया, उसको लास्ट में तो ब्रेक मार, ताकि ये क्लियर डिवाइस जो है इसको मौका ना मिले क्लियर करने का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ आई इक्वल इक्वल 350 कर दिया, तो ब्रेक कर दे, ठीक है, ताकि क्लियर डिवाइस ना हो जब आई 350 है हमारा, ठीक है ना। या आप क्लियर डिवाइस पहले ही रख सकते हो यहाँ पे, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। क्लियर डिवाइस का पहले ही करोगे आप, तो पहले ही क्लियर हो रहा है, उसके बाद बन रहा है कोई चीज, यानी कि पुरानी क्लियर हो रही है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं क्लियर डिवाइस यहाँ लिखूंगा। सो आई थिंक दैट विल बी बेटर, क्लियर डिवाइस, ओके। और ये वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, लेट मी, मेरा ख्याल है फिर इसमें ये करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जब लास्ट वाला होगा उस वक्त पहले पुराना वाला खत्म होगा और बनेगा, नेक्स्ट में लूप में घुसेगा ही नहीं, तो मुझे ब्रेक करने की जरूरत है नहीं। हाँ, कंट्रोल F9, लेट्स सी। जब ये जा रहा है, जब लास्ट में रुकेगा तो दिख रहा है, ये ना रुक गया ना, अब मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको बाहर आ रहा है यहाँ से, जब जब ये रुक रहा है अभी, तो यहां से लेफ्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मैं खत्म ही कर दूंगा, आई डोंट नीड दिस, ये फजूल में था, ठीक है ना। ये ब्रेक वाला किस्सा नहीं है। हाँ, ये करेंगे कि जे को इंक्रीज करते जाएंगे, ताकि वो जे भी मैं इधर ही इंक्रीज कर रहा हूँ, कामा मार के यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, सो दैट जे कलर करे, सेट कलर जो मैं कर रहा हूँ, मैं एक बारी में एक जे का वैल्यू 0 है, दूसरे में 1 है, 2 है, 3 है, उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं आपको इस गाड़ी के। तो अगर आप देखोगे कंट्रोल F9 फिर से, यू सी द कलर, देखो इसमें कलर चेंज हो रहे हैं ना, थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लग रहा है, कुछ बंटिंग हो रही है इसकी। फिर यहाँ से बार आ रहा है, जो बार पूरा इसके नीचे आ गया, फिर इसको ये ऊपर ले रहा है। अब ये काम करना है मैं, ठीक है, ये मैं कर चुका हूं, तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा।
वरना ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो क्लियर डिवाइस यहाँ पे जरूरत नहीं है मेरे को, मैं ये अभी करूँगा डिलीट। तो अब मसला है कि मुझे पहले जो बार, जो मैं नीचे वाला बार है वो कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, उसको समझते हैं। यानी कि ये वाला, जैसे ये बन गया, मैंने थोड़ा सा साफ बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये जो ट्रक बन गई मेरी, अब यहाँ पहुंच गई ये ट्रक स्क्रीन के इस एंड पे, ठीक है। अब मुझे जो बार है बिल्कुल इसके नीचे बनना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे बनना चाहिए थोड़ा सा। तो मुझे देखना है कि पहले जो ये मेरा ट्राइंगल है, इसका ये पॉइंट जो है, इसका एक्स और वाई क्या है, और ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये इसका ये पॉइंट जो है, इसका एक्स एंड वाई क्या है। तो डेफिनेटली जो रेक्टेंगल है वो यहां से शुरू होगा, जो इसका यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ जहां से गाड़ी है, जहां एक्स पहुंचा है इस वक्त, जो पहले हमने यहाँ बनाई थी गाड़ी, ठीक है ना, नाउ गाड़ी यहाँ पहुंच गई है, तो वो आई एक्स को, वो एक्स प्लस आई करके वो यहाँ पे आ गई है। सारे जितने भी एक्स हैं उनको मैंने आई को प्लस कर दिया, वो आगे आगे चल के, क्योंकि एक्स आगे आगे जा रहा है, अभी एक्स 0 था, फिर 10 था, फिर 20, फिर 30, तो इस तरह से आगे आगे जा रही है गाड़ी, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुंची उस वक्त क्या एक्स का वैल्यू था, ठीक है ना, उसी हिसाब से क्या वाई का वैल्यू था, उसी से देखो ये इनका एक्स एंड वाई वैल्यू क्या थे, यहाँ पे टायर भी हैं इसके, तो उसके नीचे बनाऊंगा मैं उसी एक्स के, उसी एक्स पर और उसी वाई पर, यानी कि इस डब्बे के जो एंड है, जो इंजन वाला बॉक्स है उसका जो एंड है वहां तक, ठीक है ना, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं। सो वो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे वो मैंने कहां से डिमेंशंस लिए, मैंने देखा कि आई जब पहुंचा है उधर आल्ट एंटर, जब आई पहुंचा है लास्ट में, यहां दिखे, जब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था, लास्ट में क्या होगा आई का वैल्यू, क्योंकि ये 0 था, 350, आई कुल 350 ऐड हो रहा है ना, इसको आई ऐड हो रहा है, आई का वैल्यू कितना है लास्ट में 350, यानी कि टोटल रेक्टेंगल जो यहाँ पे होगा 350 होगा। तो यानी कि रेक्टेंगल का जो स्टार्ट होगा वो 350, यानी कि क्योंकि जो रेक्टेंगल मेरा ये है, इसका बिगिनिंग जो होगी वो 350 से शुरू होगी, जो एंड पे ये पहुंचा है, ठीक है ना। और y के साथ में कुछ कर ही नहीं रहा हूं, y इसी सिमत में है, और जो फिर जो बॉटम पॉइंट है इस रेक्टेंगल का, उसका x कितना है 200 प्लस आई, 200 प्लस 350, दैट इज 550, है ना। तो उसका 550 होगा, यानी कि क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्रीन चेंज करने पड़ता है ना, तो इसलिए, तो ये जो है मैं भूल गया कितना था वो, लेट मी सी, वन नोट भी 2 बार आ गया। सो मैं 3.5 कितना चलाऊं मैं, हाँ, मैं यहाँ पे मैं चला हूँ 350 तक, आई तक, और पहला आई इसका होगा वो 350 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0 था। तो जब 0 से हमने आगे चले हैं, ठीक है ना, व्हेन वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, तो जब मैं यहाँ से मैंने मूव किया हुआ है ट्रक को यहाँ पे पहुंचाया है, तो यहाँ 0 था एक्स, फिर 350 मैंने ऐड इसको किए हैं, सो इसका एक्स कितना होगा 350, ये दिमाग रखना है। वाई तो वही है, क्योंकि वाई जो यहाँ पे वाई था वो यहाँ पे वाई है, जो हाइट डाउन इस ट्रक की है वो यहाँ पर भी है, वाई के साथ तो छेड़ना ही नहीं है, वाई तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो उस वक्त है, ओके, क्योंकि इसका भी वाई सेम है, इसका भी वाई सेम ही है, तो वाई में कोई चेंज है नहीं हमारे पास। तो इसका जो एक्स है वो 350 यहाँ पे बन गया है, और जो ये वाला पॉइंट है इसका एक्स कितना है, क्योंकि ये खुद 200 था, और 200 को आई ऐड करके, आई ऐड करके 350 और ऐड करके, यानी कि 550 हो जाएगा ये, यानी कि इसका एक्स वैल्यू है 550। इस तरीके से देखूंगा मैं, ये मुझे असल में इसकी चिंता नहीं है, मुझे यहाँ तक लेनी है बराबर, जो इंजन का बॉक्स है उसका ये पॉइंट जो है वो कितना है। सो मैं देखूंगा वो वाला, ये वाला है, दैट इज 250 मेरा था, 250 प्लस 350, क्योंकि इसका एक्स 250 था, और आई ऐड करके हो गया 350 प्लस 250, दैट इज 600, यानी कि इसका जो है ये 600 है, ठीक है ना। तो जो मेरा अब रेक्टेंगल बनेगा नीचे यहाँ पे, वो इस एक्स से बनेगा, y तो सेम ही रहेगा उसका, y थोड़ा इंक्रीज करेंगे हम ताकि इसके नीचे आ जाए, क्योंकि जो y है वो नीचे कितना है, इस ट्रक के नीचे बनानी है, थोड़ा सा नीचे ये वाला y इंक्रीज करेंगे हम, लेकिन पहले x कितना होगा, x 350 से शुरू होगा। तो अगर मुझे इस ट्रक के बिल्कुल नीचे लानी है ये रेक्टेंगल, जो बार जो ना, इसको मैं दिखा रहा हूं कि फिर ट्रक को ऊपर ले रहा है पार्किंग में, सो 350 से शुरू होगा, और x कितना यहां पर है 600 x तक खत्म होगा। और अगर इसका y जो था वो 400 था, ठीक है, तो मैं थोड़ा 400 से ज्यादा रखूंगा, से 425 रखूंगा ये, और मैं भी इसका रखूंगा 450, ठीक है। लेट अस सी दिस,
थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम सेइंग. ऑल्ट एंटर. यहाँ से आसान भी आ गई, पहले नमाज पढ़ेंगे उसके बाद आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो. सो रेक्टेंगल जो मेरा बनना चाहिए, जो नीचे वाला, वो जो 350 से शुरू 420, मैंने वाई क्योंकि 400 मेरी जो ट्रक की हाइट थी जहां तक जा रही थी वो 400 थी, तो 20 और कर दिया. और जो एंड पॉइंट उसका रेक्टेंगल होगा 600, और इस 420 और 5 मैंने और इंक्रीज किया 425 तक. अब मैंने यहाँ पे ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं, लेकिन करूंगा मैं ये किस में, ये मैं करूंगा इसमें इन माई दिस थिंग, इन माई लूप, ताकि मैं इसको फिर ऊपर ऊपर ले जाऊं. जब आप ऊपर लेंगे तो आप क्या करोगे, पहले पहले मैं वो बार को अब राइट से ला रहा हूं. अगर आप देखो कंट्रोल F9, इफ यू सी कि बार जो मेरा आ रहा है, जब ये यहां पे रुकेगा उस पर बार स्क्रीन के बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, स्क्रीन के बाहर से आ रहा है नीचे तक, ठीक है. तो इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है, उसको मैंने 800 से शुरू किया, x 800, यानी कि आपका जो स्क्रीन है इसकी लेंथ से ज्यादा, ठीक है. मान लीजिए 600 आपका स्क्रीन है, मैंने 200 और कर दिया, यानी कि यहां से स्क्रीन के बाहर मैंने x शुरू कर दिया. और 420 मैंने वो डायमेंशंस वही रखे जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं कि कितना x और कितना y, और ये रहा y मेरा. और अगर मेरा 600 था x, इसको 1050 यानी कि यहाँ पर भी मैंने 400 ऐड किए और यहाँ पर भी मैंने 400 ऐड किए, ताकि जो बार है जहां पर मुझे बनना है उससे 400 मैंने उसको राइट इंक्रीज किया, ताकि वो स्क्रीन के यहां से शुरू हो. और उसके बाद मैं इस x को डिक्रीज कर रहा हूं, मैं इस 800 x को डिक्रीज कर रहा हूं, ताकि ये लेफ्ट लेफ्ट आए, और ये लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है. और एक नया साउंड दिया, 200 का साउंड दिया, उसने 700 का दिया था, और यहां पे नो साउंड से बंद हो जाएगा साउंड, और ये यहां से आ रहा है रेक्टेंगल. तो इससे क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगल यहां पे बना था, स्क्रीन जो अगर ये है तो स्क्रीन के बाहर बना था, अब ये यहां यहां आ रहा है. अब मैं इसको क्लियर डिवाइस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं क्लियर डिवाइस यहां पे करूंगा वो फिर मेरी वो ट्रक भी डिलीट करेगा, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं. तो वो काइंड ऑफ बार्स दिख रहे हैं, वो एक रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, लाइक ए बार दिख रहा है, वो भी डिजाइन में दिख रहा है, वो भी ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लियर डिवाइस करूंगा तो उससे मेरा जो मेरा वो ट्रक की शेप बनी वो भी क्लियर हो जाएगी, वरना मुझे फिर से वो भी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना. तो ये बन गया बार, और ये आ रहा है राइट साइड. अब मुझे इसको ऊपर उठाना है ना. सो ऊपर उठाने के लिए क्या होगा, y जो मेरे इसके हैं, जो y डिमेंशन इसके हैं, उसको मैं डिक्रीज करता जाऊंगा ताकि वो ऊपर जाए, ठीक है. मैं इसको यहां पे दिखाऊंगा आपको. उसके बाद जब ये बार बिल्कुल रुकेगा कहां पे, 450 मैंने इसको किया, 450 तक मैं इसको ला रहा हूं, ताकि जब मैं 800 को 450 माइनस करूंगा, क्योंकि 800 आई 450 हो जाएगा, वो 350 बनेगा. सो एग्जैक्टली वही होगा जो मैंने कैलकुलेट किया था कि ट्रक के बिल्कुल नीचे 350 है. सो शुरू है 350 और एंड है 600 एक्स, ठीक है ना, 350 और 600 एक्स. तो वहां पे वो रुकना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 450 तक मैं इसको माइनस करता जाऊंगा, ताकि ये वहां पे आ जाएगा. और स्पीड मैंने रखी है इसकी डिले की 50. यू कैन इंक्रीज द स्पीड से, इसको मैं 10 ही रखता हूं ताकि क्विकली आ जाए, ठीक है. उसके बाद मैं क्लियर डिवाइस करूंगा ताकि वो खत्म हो जाए, और उसके बाद मैं इनको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है. अब ऊपर लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको काम मैं वो जो ऊपर मैंने कोड लिखा रेक्टेंगल का, वो सारा कोड में फिर से लिखूंगा, ताकि मैं ट्रक को, अब मुझे ट्रक भी और ये बार भी जब मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, ट्रक पूरी, उसके सर्कल्स, उसका ये और उसका नीचे वाला बार, ये फिर से बनाना पड़ेगा हर बारी, हर आइटरेशन इस लूप के बनाना पड़ेगा. और क्लियर डिवाइस, फिर जंप मारेगा ऊपर, क्लियर डिवाइस, ये क्लियर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन. लेकिन अब इस बारी में y को डिक्रीज करूंगा, क्योंकि जो मेरा स्क्रीन होता है उसका y टॉप में कम होता है, तो नीचे नीचे जाएंगे y इंक्रीज होगा. इसलिए अगर मेरी नीचे गाड़ी है, इसको ऊपर लेने के लिए मेरा y क्या हो जाएगा, डिक्रीज. आई हैव टू डिक्रीज y. तो मैं यहां पे डिक्रीज कर रहा हूं y को. तो जो भी मेरा y है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो डायमेंशंस हैं वही मेरी यहाँ पे डायमेंशंस हैं, क्योंकि ये वाली डायमेंशन होगी ना 350, क्योंकि 800 को मैं 450 जो माइनस करूंगा, आखिरकार ये पहुंचेगा 350 पर, एंड सो ऑन. सो ये वाला रेक्टेंगल जो है ये बार है, ये वाला बार है, ठीक है ना. दिस इज द बार वाला, ये जो बिलो बार है जो कि इसको उठाएगा. तो वो मैं 350
और 400 से शुरू करूंगा और 600 600 425 जो मैंने अभी कैलकुलेट किए थे डायमेंशंस वही। इनको मैं y को अब डिक्रीज करूंगा -y, और y डिक्रीज हो रहा है 10 10 10 10 और 290 तक। इसी तरीके से यहां पे अब मैं बनाऊंगा ये वाली जो है वो मेरी, जिससे मैंने ट्रक बनाई वैसे ही मैं बनाऊंगा ये ट्रक। ठीक है, अब वहां पे बनेगी जहां पे है। सो 350 से शुरू जहां खत्म हुई थी, और 300 555 एंड 550 और 400, इनको मैं आई माइनस करूंगा। और दूसरी जो मेरी है, ये डिमेंशन मुझे निकलेंगे, ये जो ये 350 कब है कि जब ये एंड पे आ गए, जब ये यहाँ पे, जब ये वाला जो है एंड पे आ गया तो इससे कितना बना होगा, क्योंकि अगर ये 0x था 350 ऐड करो तो 350 होगा। ठीक है, ये वाला x 200 था तो 350 ऐड करो तो 550 बनेगा ये। इस तरह ये वाला रेक्टेंगल का 200 प्लस आई, दैट इज 200 प्लस 350, लास्ट में इसका होगा 550। और ये 250 प्लस आई, इसको 350 ऐड करोगे 600 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये मेरे डायमेंशन है। इस तरह से यहाँ पे 50 है, 50 को जो मैं आई पूरा दूंगा तो 350 प्लस 50, ये कितना होगा यहाँ पे, ये 400 होगा। और ये वाला होगा 150 प्लस 350, दैट इज 500, राइट। तो वही डिमेंशंस में रखूंगा यहाँ पे, एज यू कुड सी हियर। ये देखो 500 410, वो उसी को, यानी कि जहां पे वो बना, जहां पे वो लास्ट पोजीशन उसकी थी, उसमें क्या डायमेंशन थे, यानी कि जब ट्रक चली थी साइड में, उसने आई इंक्रीमेंट किया होगा ना, आई का आई आई उसमें डाला होगा एक्स के साथ, एक्स, तो एक्स बड़ा, जैसे पहले एक्स 0 था, फिर एक्स 10 बन गया 20, जब 350 बनेगा, क्योंकि 350 तक मैं चला रहा हूँ ना, तो एक्स 350 होगा या टॉप पॉइंट। इसी तरह हर एक का एक्स कितना होगा वो मैं देखूंगा 350 ऐड करके सबको, और वो ये वाले निकलेंगे। अब इसमें से मैं y को डिक्रीज करूंगा, क्योंकि मैं, मुझे अब x वही रखने हैं, अब गाड़ी उसी x में, यानी कि जो जितनी राइट चली है x वही होगा, अब x के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि x वही डिमेंशन सब के होंगे, लेकिन y डिमेंशन अब डिक्रीज होंगे, क्योंकि मुझे इसको क्या लेना है, ऊपर 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 ऊपर, सो y डिक्रीज। सो फिर मैं y को डिक्रीज करूंगा, i जितना मेरा i है, सो y डिक्रीज हो रहा है। और मैं यहां कह रहा हूं इफ i इक्वल्स टू 200 ब्रेक, ये मैं कह रहा हूं कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं ये, आई शुडंट डू दिस अगेन, क्योंकि अगर मुझे करना ही है क्लियर डिवाइसेस तो मैं इसको ऊपर ही करूंगा, है ना। ठीक है, वही बेटर है, पहले क्लियर डिवाइस करें, उसके बाद, क्योंकि जो लास्ट टाइम आएगा तो उसमें वो बनाएगा उसमें, लेकिन क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि जब लास्ट इसकी आइट्रेशन होगी, पहले क्लियर डिवाइस होगा, उसके बाद ये बनेगा सारा, पहले बार बनेगा, फिर गाड़ी बनेगी। ये वाला जो है ये ट्रक की बैक पोर्शन है ट्रक का, और ये वाला जो है ये इसका इंजन है, ड्राइवर केबिन आई कुड से, और ये वाला जो है टायर है, ये टायर 1 और ये टायर 2। तो ये सारा बनेगा, फिर भी जब लास्ट आइट्रेशन इसकी होगी जब i290 बन चुका है, ठीक है ना, लेस देन 290 जब था, तो उस वक्त जब जब लेस देन 290 289 जब था, तो क्लियर डिवाइस हो जाएगा, पुराना खत्म होगा, नया सारा बनेगा, उसके बाद कलर भी चेंज करेगा वगैरह। तो जब नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 290, अब इसमें घुसेगा ही नहीं, यानी कि लास्ट टाइम में होगा ही होगा। सो इट, आई डोंट नीड टू यूज दैट इफ। 3 एरर आ गए कहीं से, ओह आई हैव टू यूज द, यहाँ पे मैं इसको कमेंट करना है ना, कमेंट आउट, ओके कंट्रोल F9, और मत कहीं गड़बड़ की मैंने, स्टिल 1 एरर, अनडिफाइंड सिंबल क्लियर डिवाइस में कुछ परेशानी में, क्लियर CLEARDEVICE, हाँ CE, इट्स नॉट SE, इट इज CE, कंट्रोल F9, नाउ गिव इट अ गो, प्रेस एनी की, इसको फॉन्ट्स स्मॉल करेंगे। अब यहाँ से बाहर आएगा, बड़ा फास्ट आ रहा है क्योंकि मैंने डिले कम कर दिया। नाउ इट्स गोइंग अप, ओके, एंड इट्स स्टॉपिंग। आप इस कोड को ध्यान दें, इसको थोड़ा सा मैं, ये जो यहाँ पे सेट टेक्स्ट XY है इसको छोटा कर देंगे बिफोर आई गो फॉर द सलाह। प्रेस यानी कि हाँ, इसमें जो है आप 3 के बदले 2 कर दें, ठीक है ना, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। कंट्रोल F9,
हाँ, press any key to park your truck. Now it's coming properly. Now it's getting here. The parking bar comes from the out of the screen. It's coming very faster. Then it goes from the top. इसको थोड़ा सा स्पीड कम करके मैं थोड़ा एक पॉइंट बताऊंगा आपको। कहाँ पे था ये? जो ना बार बन रहा है हमारा, ये वाला बार बन रहा है ना हमारा, इसका डिले थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ये बहुत कम हो गया। लेट इट बी 50। कंट्रोल F9। अब देखिए इसमें जो रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, ये क्लियर डिवाइस पे मैंने नहीं किया, इसलिए वो दिख रहा है लाइक बार, छोटी छोटी बार्स दिख रहे हैं। क्योंकि अगर क्लियर डिवाइस में करता तो फिर उसमें क्या हो जाता कि क्लियर डिवाइस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मैं, है ना। तो इसका कलर का मसला है कि कलर एक ही दिख रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कलर एक ही क्यों दिख रहा है। सो हम्म किसमें ये कलर एक ही दिख रहा है इसमें, क्योंकि मैं कलर तो चेंज कर रहा हूँ। हाँ, मैं कलर को इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहा, मैं जे को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पे। जो मेरी ये लूप है उसमें जे को इंक्रीमेंट करना चाहिए। सो कामा जे प्लस प्लस, क्योंकि वरना एक ही कलर आ रहा था। और जे को वापस जीरो लाना चाहिए यहाँ पे, जे इज इक्वल जीरो, क्योंकि जे वहाँ पे 15 होगा ना, तो अगर प्लस प्लस करूँगा तो 16 बन जाएगा, तो वो कोई कलर ही नहीं है। हम्म now it's changing the colors here also. Now it stays with the color. So it is how you move the truck and all this. This was an introductory program. Why we do it is you have an idea how to work with the graphics. Otherwise you must have done it, right? It's मेरी लाइट भी ऑन नहीं की अभी, क्योंकि यहाँ से शाम भी हो गई। I think I should go for salah, and that's all for today. Okay? See you next time. Until then, ma salama.